Hello student, in previous lecture we have discussed the structure of HTML, and now today we will discuss the basic structural element or tag of the HTML document. So what are the basic HTML tags? Structural tag, like first is HTML tag, second is header tag, third is title tag, and fourth is body tag. So these are the basic HTML structural tag which we are going to discuss. So all we know that all the HTML documents start with the HTML tag and end with the HTML tag. This is the basic tag of the HTML document. And uh, how the web browser identify any HTML document. On the basis of these basic root element or root tag, each browser is identifies each HTML document. If a document does not contain the basic HTML tag, it will be treated like as a simple text document, right? Now, HTML tag is the outermost or it's also called root element. ये root element भी कहलाता है और outermost tag होता है. ठीक है. Next important tag is head tag. All we know that head tag comes after the HTML tag and comes before the और above the body tag. ठीक है. तो head tag कहाँ पे होता है? HTML tags के just बाद और body tag से just पहले. ठीक है. Generally, head tag contains all the information related to web document or web page, like document title है, character set है, script है, style है, all the other meta informations. So these are included in the head tag. So generally, the content which are included in the head tag are not displayed in the web page. Web page में वो display नहीं होता. ठीक है. Now next topic, next important tag is title tag. All we know that to include title in the web page we use title tag. Actually it is written within the head tag. It contains the title of the document, right? The title is displayed in the title bar. All we know that every web page has a title bar, and titles of the web page is displayed in the title bar. Now title should be short. टाइटल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए. और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? लेंथ शुड बी लेस देन 64 कैरेक्टर. 64 कैरेक्टर से कम होना चाहिए. ठीक है. नाउ next main tag is body tag. The body tag contains the text which get displayed on the web page. Generally body tag क्या contain करता है? कौन से element contain करता है जो कि web page पे display हो. ठीक है. और उससे ही वो add करता है. Right. In the body tag we use formatting elements like images, heading, list, hypertext to enhance the appearance of the web page. तो बॉडी के अंदर ही लगभग सभी एलिमेंट सभी टैग्स होते हैं, जैसे इमेजेस हैं, हेडिंग्स हैं, लिस्ट, हाइपरलिंक है या और फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो ये सब कहाँ पे आपको मिलेगा? बॉडी में, राइट. और एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग. आपको पता ही है कि जितने भी ओपनिंग टैग हैं उसका क्या होना चाहिए? क्लोजिंग टैग होना चाहिए. ठीक है. जो कि क्लोजिंग टैग में हम क्या लगाते हैं? एक फॉरवर्ड स्लैश, टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं. ठीक है. टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव. ये ध्यान रखिएगा कि टैग्स केस सेंसिटिव नहीं होते. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टैग्स को चाहे हम कैपिटल लेटर में लिखें चाहे स्मॉल लेटर में लिखें, बट उसकी स्पेलिंग जो है से वो नहीं चेंज होनी चाहिए. जैसे हेड है तो हेड की स्पेलिंग HEAD, हेड, चाहे हम कैपिटल में लिखें ये भी एक टैग होगा, चाहे स्मॉल में लिखें. तो इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव. Now next topic is how we create a HTML document. Generally हम कैसे HTML document को create करते हैं? इसके लिए हमें वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत होती है. वर्ड प्रोसेसर जैसे वर्ड पैड है, नोट पैड है. ठीक है.
और एम एस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली हम इसका नोट पैड का यूज़ करते हैं या वर्ड पैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर राइटिंग द HTML कोड, और उस फाइल में नोट पैड में हम HTML कोड लिखने के बाद उसको किस एक HTML एक्सटेंशन से सेव करते हैं, HTML एक्सटेंशन से या फिर STM एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो .html या STM एक्सटेंशन से ही फाइल सेव होता है, ठीक है। We can use various tools like Micromedia Dreamweaver, Microsoft Front Page, Notepad++ to create and design web pages. हम इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे Micromedia Dreamweaver, Microsoft Front Page, Notepad etc. ठीक है। अब हमने क्रिएट किया वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए नोटपैड का यूज़ किया। अब उसको व्यू कैसे करते हैं? सिंपल, व्यू करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। तो जितने भी HTML डॉक्यूमेंट्स हैं वो जनरली हम कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं? किसी न किसी वेब ब्राउज़र में। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? आप सभी को पता है कि ये एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि वेब डॉक्यूमेंट या HTML डॉक्यूमेंट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स वेब ब्राउज़र्स के क्या हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ठीक है। अब कैसे ओपन करते हैं ये आपको पता ही है। स्टार्ट वेब ब्राउज़र, गो टू Ctrl+O, ब्राउज द HTML फाइल एंड देन क्लिक ओके। अभी ये एक प्रोसेस के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। A web page is displayed in the web browser window, ठीक है। Just notice that the address bar of the web browser complete path of the file name with the extension displayed here. अब देखिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, कैसे उसको सेव करते हैं और कैसे उसको वेब ब्राउज़र में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर HTML वेब पेज क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे कि नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के लिए रन कमांड पे, रन प्रॉम्प्ट पे हमने क्या किया, नोटपैड टाइप करके देखिए रन कमांड पे नोटपैड को क्लिक किया, नोटपैड आ गया। अब इस पे हम बेसिक स्ट्रक्चर HTML स्ट्रक्चर के कमांड्स लिखेंगे जो कि मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। मैंने इसे कॉपी किया और उस नोटपैड पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बेसिक HTML स्ट्रक्चरल टैग्स। अब देखिए HTML फर्स्ट टैग है, सेकंड टैग क्या है, हेड है, थर्ड टैग है टाइटल, जो टाइटल किसके अंदर है, हेड के अंदर। और बॉडी में अभी हमने कुछ नहीं डाल रखा है, बॉडी में जो भी हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उसे डिस्प्ले कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं जैसे दिस इज माई फर्स्ट HTML वेब पेज, राइट। इसको लिख के हमने इसको, अब देखिए हमने जो भी टैग या कोडिंग करनी थी हमने कर लिया इस नोटपैड में। अब इसको हम सेव कैसे करेंगे, सेव करेंगे Ctrl+S से सेव किया। सेव करने के बाद इस फाइल को हम पाथ दे देंगे कहाँ पे हमें इसे सेव करना है, ठीक है। हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्लास 10 का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर इसको सेव किया। अब इसको हमने दे दिया फर्स्ट पेज .html, इसे सेव किया विद द HTML एक्सटेंशन से। याद रखिएगा कि जितने भी HTML डॉक्यूमेंट होते हैं वो .html एक्सटेंशन से ही सेव होते हैं। हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने का दो तरीका होता है। पहले तो या तो हम पहले उस लोकेशन पे जाएं, उस लोकेशन पे जाके हम क्या करें, जैसे हम अभी हम क्या है, हम डेस्कटॉप पे गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद इस फोल्डर में गए जहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है उसको हमने फर्स्ट पेज डॉक्यूमेंट
उसको ओपन विथ कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ। अब देखिए यहाँ पे एक सिंपल वेब पेज जो हमने बना रखा था, दिस इज़ माय फर्स्ट HTML। तो ये बॉडी के अंदर हमने ये टेक्स्ट दिखा रखा है, वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और टाइटल के अंदर हमने यूजिंग हेडिंग HTML ये टेक्स्ट हमने देखिए, टाइटल के अंदर हमने ये, और बॉडी के अंदर हमने दिस इज़ माय फर्स्ट HTML वेब पेज। ठीक है, एक तरीका ये है। अब यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि जो ब्राउज़र का एड्रेस बार है, एड्रेस बार में फाइल का पाथ आ रहा है। फाइल का पाथ मतलब कि जिस लोकेशन पे वो HTML फाइल स्टोर है उसका पाथ दिखा रहा है। एक तरीका ये भी है कि अगर हम ब्राउज़र में ओपन कर लें, एक टैब में हमने क्या किया, सिंपल उसी पाथ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तब भी वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखिए, ठीक है, ओपन हो गया। या फिर हम क्या करें, कंट्रोल O करें, कंट्रोल O करने के बाद उस फाइल को हम ब्राउज कर लें, ब्राउज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हम कैसे किसी फाइल, किसी HTML फाइल को ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे football.html एक दूसरा वेब पेज है, उसको हम ओपन कर रहे हैं, ये हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये एक HTML वेब पेज ओपन हो गया। तो अभी हमने देखा कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे वो फाइल है उस पर राइट क्लिक करके उसको ओपन विद इंटरनेट ब्राउज़र, किसी भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि एड्रेस बार में, ब्राउज़र के एड्रेस बार में हम उस फाइल का पाथ यहाँ राइट कर दें, पाथ यहाँ राइट कर दें फाइल का, तो वो वेब पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि ब्राउज़र ओपन करके हम कंट्रोल O मतलब कि ओपन द फाइल ऑप्शन से हम फाइल को ओपन करके उसको लोकेट करके ब्राउज करके उसे ओके कर दें। ठीक है, तो ये 3 तरीके हुए। अब इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम HTML फाइल को क्रिएट करते हैं नोटपैड में, उसको कैसे सेव करते हैं, उसको सेव करने के बाद उसको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, कैसे उसको व्यू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक